Doctor? دعوت دے رہے ہیں جناب آصف سلیم صاحب سے درخواست کروں جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمان ڈاکٹر فریزادہ قاسمی صاحب
عباس قادری صاحب, ڈاکٹر نور نبوی صاحب, فاطمہ زہرا اور عرفان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ اتنے خوبصورت محفل سجانے پہ. سب سے پہلے تو میں فیاض صاحب آپ کی ٹیم کا ممنون ہوں, اور خاص کر کیوں ممنون اس لیے ہوں کہ پروگرام ہی ڈاکٹر نور نبوی کا ہے, تو اتنا خوبصورت پروگرام کیسے نہ ہو. یہی پروگرام 25 ستمبر کو ہم نے شکاگو میں فرنگان کے نام پہ کیا تھا, اور وہاں بھی یہی جمع غفیر تھا, اور اسی طریقے سے پروگرام پیش ہوا وہاں پہ بھی. اور آج کیونکہ جشن نور تو نور بھائی کا بہت ہو چکا ہے, لیکن میں اس پلیٹ فارم سے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اپریل میں ہم ڈاکٹر نور صاحب سے میری بات نہیں ہوئی ہے, لیکن ڈاکٹر نور نبوی صاحب کا ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں. ان کی جتنی بھی غزل ہیں اس کو ہم لائیو شکاگو میں پیش کریں گے, ان کی غزل کمپوز کر کے اور لائیو ہم وہاں پہ چلائیں گے انشاءاللہ. اور ڈاکٹر نبوی صاحب کو کرتے دیں گے. میں اس کے ساتھ ہی بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں, اور فیاض میں آپ کا بہت بہت شکریہ. شکاگو کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو بہت بہت سلام, اور خاص کر میرے جو کولیگ ہیں سرور زحا, ان کی جانب سے بھی آپ سب کو سلام. بہت شکریہ. بہت شکریہ آصف سلیم صاحب. اب میں درخواست کروں گا محترمہ ڈاکٹر شمشد قریشی صاحبہ سے کہ اپنے خیالات کا اظہار تشریف لاتی ہیں. ڈاکٹر شمشد قریشی صاحب, آپ ڈیلس سے تشریف لائیں. السلام علیکم. صدر محترم شورائے کرام اور خواتین حضرات, سب سے پہلے تو میں قلبی مبارکباد دینا چاہوں گی میرے بھائی جناب ڈاکٹر نور نبوی صاحب کو, کہ ان کے آج اس عظیم الشان جشن کی, اور محترم فیاض خان صاحب کو بھی کہ انہوں نے ڈیلس میں ہی بلکہ پورے امریکہ سے قیمتی ہیرے کا انتخاب کیا, اور اس کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو مہمان خصوصی سمجھا. اپنی مصروفیات کے پیش نظر میں محکم مشاعروں میں جایا کرتی ہوں. اپنے شہر سے باہر تو میں بالکل نہیں جاتی, لیکن فیاض خان صاحب نے جس خلوص و محبت سے مجھے دعوت دی, میں سے انکار نہ کر سکی. ویسے بھی جہاں جناب ڈاکٹر نبوی صاحب کی بات ہو تو انکار میرے لیے ناممکن سی بات ہے. میں بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ آج جشن نور میں شرکت کر رہی ہوں. فیاض بھائی کا نام اور ان کے مشاعروں کی دھوم تو کافی سن رکھی تھی. ویسے یہ ڈاکٹر صاحب کے خاص دوستوں میں سے ہیں, اور ڈیلس میں ہمارے مشاعروں میں تشریف لاتے ہیں, تو ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے. فیاض بھائی ایک مخلص وزردار شخصیت کے مالک اور بااخلاق انسان بھی ہیں. اب میری بات ڈاکٹر نور نبوی صاحب کی, تو شاعری کے بارے میں بہت کچھ بولنا چاہتی ہوں, لیکن تنگے وقت کا بھی خیال ہے. پوری ادبی دنیا اس بات سے واقف ہے کہ وہ میرے مغل بھائی ہیں, لیکن اخلاص اور پاکیزگی کی ان کے اور میرے درمیان اتنی گہرائیاں ہیں کہ میرے لیے حقیقی بھائی کی طرح ہیں. ڈاکٹر نور کی شاعری کے بارے میں بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. ان کی شخصیت کے بارے میں حیثیت بہن جتنا میں جانتی ہوں کوئی اور نہیں جانتا. ڈاکٹر نور نبوی صاحب انتہا شریف النفس اور خوف خدا رکھنے والے انسان ہیں. خدمت خلق اور سخاوت کا جذبہ انہیں کوٹ کوٹ کر بھرا ہو. لالچ کینہ پروری جیسی اخلاق تھی. بیماریوں سے وہ ادبی اور ادبی سیاست سے کوسوں دور رہتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں. ایک طویل عرصے سے میں بھی امریکہ میں مقیم ہوں, لیکن اتنی چاہت, عزت اور مقبولیت میں نے باخبر کسی اور شہر میں یادی میں نہیں دیکھی. شاید تو امریکہ میں یقیناً ان سے بڑے بھی ہیں اور بہتر بھی ہوں گے, لیکن اتنے کم وقت میں اتنی دل عزیزی بے شک انہیں کو نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے. اس کے باوجود ان کی ساری کا یہ عالم ہے کہ کبھی اپنے مشاعرے میں بھی اسٹیج پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے,
मेरे इसरार के बावजूद फ्लायर में कभी अपना नाम या तस्वीर तक देना पसंद नहीं करते। हद तो ये हो गई कि कई तंजीमों ने इनके साथ शाम जश्न की ऑफर की तो भी माजरत कर ली। मुझे मालूम है कि फयाज खान साहब से भी कई दफ़ा नूर साहब ने माजरत की और कहा कि मैं इसका अहल नहीं हूँ। आखिरकार मुझे कहना पड़ा कि अल्लाह सुब्हान व तआला जब इज्जत दे रहा है, नवाज है आपको, तो इसकी तो कदर करें। तब उन्होंने जाके जश्न की हामी भरी। आखिर में मैं डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब के इन जुमलों पर अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि उन्होंने डैलस में 2008 के एक मुशायरे में फरमाया था कि नूर के नाम में, काम में और कलाम में अल्लाह बरकत डाल देता है। मेरे भाई डॉक्टर नूर अमरोही साहब पर अल्लाह ताला इसी तरह की बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाता रहे। आप सभी की आमद का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा फातिमा ज़हरा जबी साहिबा से कि आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। फातिमा ज़हरा जबी साहिबा। आप कनाडा से तशरीफ लाई फातिमा ज़हरा जबी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिब सदर तो पीरजादा साहब हैं, तो जनाब साहिब सदर मौजूद शौहरा इकराम और हाज़रीन महफिल, मैं फातिमा ज़हरा जबीन कनाडा से आप सब के लिए मोहब्बत से महकते हुए फूलों का तोहफा लेकर आई हूँ। और कैनेडियन बर्फ़ज़दा और सर्द माहौल से निकलकर ह्यूस्टन की इस पुरजोश महफिल में शिरकत मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं। और इसका सहरा तक़दीर अदब के रूह रवान जनाब फयाज खान साहब के सर बनता है, जिनकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं जश्न नूर और महफिल मुशायरा के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। नहीं हो उनका जब साया दुआएं काम करती हैं, दुआएं काम आती हैं। माज़रत खाम गलत पढ़ गई। नहीं हो उनका जब साया दुआएं काम आती हैं कि दुनिया से गुजर के भी ये माए काम आती हैं। नूर को जश्न नूर मुबारक। नूर के नाम से मेरा ख़ास ताल्लुक़ है, ऐसी वाबस्तगी है जिससे मफर मुमकिन नहीं। ये नाम मेरे कानों में रस घोलता है, यादों की बारात धीरे धीरे सितारों के हुजूम से मुझे बहुत दूर ले जाती है। दो चेहरे, उनके नकोश मेरे सामने आ जाते हैं, जिन्होंने मुझे नाम दिया और उस नाम की हुर्मत की तरबियत दी। इस खास रिश्ते ने ही मुझे नूर से जोड़े रखा है कि वालिद साहब ने माँ को हमेशा नूर के नाम से ही कलाम किया। गो कि ये रिश्ते अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरे दिल में, मेरी हस्ती में, मेरे कलम में, मेरी फ़िक्र में आज भी इसी तरह बसते हैं जैसे उन्होंने मेरी दुनिया में आमद पर पहली बार अपने लम्स से मुझे नवाजा होगा। यही सबब है कि नूर से मेरा ताल्लुक़ बना। ये कोई तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है कि नूर टोरंटो के एक आलमी मुशायरे में शिरकत के लिए आए। मैं भी वहीं महफिल में मौजूद थी। मेरा ख्याल है मैं गज़नफ़र हाशमी से उस वक्त बात कर रही थी जो यहाँ मौजूद हैं। वो मुस्कुराते हुए आए और मुझे बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मेरी तरफ बढ़े और कहा कि आप सलाम दुआ के बाद बोले कि फातिमा आप कैसी हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कहा मुझे भी। अब मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि कौन है ये, तो उनको मेरी मुख्तसर जवाब पर बड़ी हैरत हुई। वो खुद ही आगे बढ़े और कहा अरे फातिमा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं नूर हूँ, नूर अमरोही। और मैंने कहा अच्छा, मैं याद करने की कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने फिर दोबारा वही कहा कि आपसे दुबई और अबू धाबी में मुलाकात रही और मुझे याद आया अरे नूर आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और उस खुशी का इजहार मैंने उसी वक्त किया, लेकिन आप इतने बदल गए हैं कि मुझे पहचानना मुश्किल हो रहा है। आगे दोबारा बदल गए हैं वजन कम करके। बदलते ही रहते। मेरी नूर से कोई 17-18 साल के बाद मुलाकात हुई थी।
जो पुरमसरत थी। फिर इसके बाद नूर से गाहे बगाहे गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा। अब ये मुझे बाजी कहकर पुकार लेते हैं, हालांकि मैं इनको अपना बड़ा भाई समझती हूँ, क्योंकि बहनें भाइयों के लिए हमेशा छोटी ही अच्छी लगती हैं। अब आप पे मुनहसर है कि आप मुझे छोटी बहन तस्लीम करें या उनको बड़ा भाई तस्लीम करें, बात तो जीत तो मेरी ही है। जश्न नूर के कई सेशन हो चुके हैं जिनकी शोहरत मुझ तक पहुंची है। गोया के जश्न मुशायरा जश्न नूर में ढल गया है, जिसमें हमेशा नूर की पजीराई हुई है। नूर की जो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनकी लबे लहजे की शाइस्तगी, इजहार फिक्र में सादगी है जो दिल को छू लेती है। इनके पास जिंदगी का मुताला और मुशाहिदा दोनों है। जरा सी देर ख्यालों में गुफ्तगू की थी, जरा सी देर ख्यालों में गुफ्तगू की थी, फिर उसके बाद वो तस्वीर से निकल आया। नूर भी तस्वीर के फ्रेम से निकल आए हैं। हाज़रीन महफिल के साथ मैं भी शादा व फरहम हूँ कि मेरे मानवी भाई की हकीकी ना सही शायराना सहराबंदी की रस्म है, और बहन की हैसियत से मैं नेक की हकदार तो बनती हूँ ना नूर। इस पुरनूर महफिल में नूर तुम्हें जश्न नूर मुबारक। शुक्रिया। ठीक है, हाँ इधर करिए थोड़ा सा, वरना फोज कवर हो जाएगा। अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा फौजिया सैयदा साहिबा से कि वो आकर अपना, अगर मौजूद हैं यहाँ पे फौजिया सैयदा साहिबा तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की तकरीब जनाब फयाज खान की तरफ से एक खूबसूरत तोहफा है जो डॉक्टर हाफिज नूर अमरोही साहब की नज़र की जा रही है। जनाब नूर अमरोही साहब अपनी अदबी सरगर्मियों के बायस अदबी हल्कों में खूब जाने पहचाने जाते हैं। अगर बात शुरू की जाए कि आप कहाँ पैदा हुए और शायरी का शौक़ किस उम्र में पैदा हुआ, क्या कम उम्री में ही सिलसिला जारी हुआ या माहौल के ज़ेर असर शायरी से रग़बत हुई? आपके उस्ताद कौन थे, या ये खुदादाद सलाहियत है जो बारिश की बूंदों की तरह इनके दिल के आंगन में जलकर पैदा कर देती है? तो आइए एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं और उसके बाद उनकी शायरी की दिलकशी पर मंजरकशी की जाएगी। जी हाँ, मंजरकशी, क्योंकि खूबसूरत कलाम की आमद और दुनिया में जा बजा फैले हुए खूबसूरत मनाजिर इंसानी इख्तियारात से बालातर हैं। जनाब नूर अमरोही साहब अमरोहा में पैदा हुए और अदबी माहौल और मजालिस में बचपन की दहलीज को पार करते करते जवानी की उम्र को पहुँचे। खुदादाद सलाहियत होने के साथ साथ सोने पे सुहागा अदबी माहौल और मजालिस पे मैसर आ जाए तो शायरी भी परवास करती गई। रंग खुलता जाए है जितना कि उल्टा जाए है। नूर अमरोही साहिब 42 में मुकीम हैं और उर्दू की डोर हाथ में लिए अदबी सरगर्मियों में कोशा रहते हैं। वो मैं रहा रही न सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। जिंदगी की भाग दौड़, रोजगार की हुसूली, माशरती और समाजी तवक्कात और फिर हाफिज़ कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह काबिल तहसीन है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला आपको और आपके अहले खाना को हिफाजत में रखे और नज़र बद से महफूज रखे। आमीन।
आपकी शायरी और अंदाज़ बयां और बेहतरीन तरन्नुम से उसकी अदायगी दिल में उतर जाती है। आपका मौज़ूए सुख़न ख्वाह दिलरुबा की राहनाइयाँ हो या रूहानियत की शनासाई हो या माशरती और समाजी एहसासात की अक्कासी हो, आप ही की गज़ल में मुख्तलिफ मौज़ूआत हुस्न खूबी से लेके चलते हैं और क्या खूब चलते हैं। मसलन जैसे याकूत पे चांदी के बरक़ लिपटे हों, हमने देखे हैं वो भीगे हुए लब पानी में। फिर कुछ इस तरह बैठ जाते हैं तहे आग और रेज़ों की तरह, डूब जाते हैं बड़े नामुनस्सब पानी में। फिर कुछ इस तरह गर सफीने पे ना हो रहमत बारी है नूर, आन की आन में मिट जाता है सब पानी में। आपकी खूबसूरत शायरी में तशबीहात का अनोखा रंग एक तिलिस्माती दुनिया की सैर कराता है। सुनने वाला ख्वाब हवास की दुनिया से कुछ इस तरह गुजरता चला जाता है कि कलाम खत्म हो जाता है, मगर उस कलाम की सरह अंगेजियाँ बरकरार रहती हैं और मज़ीद सुनने की तलब पैदा होती है। जैसा कि मैंने अपने मौजू के शुरू में कहा था, एक अच्छी शायरी और अंदाज़ तरन्नुम की खूबसूरती किसी खूबसूरत कुदरती मंजर की तरह है, जैसे पानी में झिलमिलाती सूरज की किरणें निगाहों को बांध देती हैं, या सुरमई बादलों के किनारों पे चांदनी की तरह चमकती हुई सूरज की किरणें आंखों को खेजा कर देती हैं, या बादलों से निकलता चांद जो कायनात की वसत में आपका हमसफर बन जाता है, या किसी वादी में खूबसूरत आबशार जो फिजा में जलतरंग पैदा कर दे। इसी तरह एक शायर का खूबसूरत कलाम अदब से वाबस्ता लोगों के ज़ौक़ की तकमील कर देता है। मैं बज़ाते खुद आपकी शायरी की तमाम तर खूबियों से मुतासिर हूँ, मगर आपकी तशबीहात निहायत दिलावेज़ होती हैं। आपकी निगाह का मुशाहिदा किसी मुसव्विर की बनाई हुई एक दिलफरेब तस्वीर बद के सामने आ जाता है। मसलन धूप निकले तो पिघलते नहीं दिल के मौसम, धूप निकले तो पिघलते नहीं दिल के मौसम, एक दो रोज तो ये बर्फ जमी रहती है। फिर कुछ इस तरह उसकी मोहब्बत का है बादल मुझ पर, कहकशां जैसे फिजाओं में थमी रहती है। जनाब नूर अमरोही साहिब नसर निगारी से भी दिलचस्पी रखते हैं और इस ज़िम्न में कुछ नाविल अशात पा चुके हैं। मेरी दरख्वास्त है आप ऐसी महफिलों को भी तश्कील दीजिए जो मुख्तसर नसर निगारी के फ़न को उजागर करें। नसर में शायरी की तरह औज़ान और तख्ती के अमल से गुजरे बगैर नसर निगार बहुत खूबसूरत अंदाज में मंजर कशी का हामिल हो जाता है और बहरहाल नसर निगारी अदब की एक बड़ी शाख है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जनाब फयाज़ खान साहब का, जिन्होंने मुझे याद किया और मौका दिया कि मैं जनाब नूर अमरोही साहब के ताल्लुक़ से कुछ लिख सकूँ। आपका नाम सुनकर मुझे यकीन था मैं जो कुछ कहूँगी दिल से कहूँगी, क्योंकि सच्चाइयों को बेसाखियों की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह सुब्हान ताला इंकिसारी को पसंद करते हैं। नूर अमरोही साहब की इंकिसार तबीयत इनकी शख्सियत में निखार पैदा करती है। जब ये स्टेज पे तशरीफ़ लाते हैं तो देखने वाली आँख और महसूस करने वाला दिल पहले ही इनकी शख्सियत के ज़ेरे असर आ जाता है। आखिर में इन्हीं के अशार से अपने मौजू का इख्तिताम करूँगी जो उन्होंने अपने बचपन में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कहे। बशर तो शर का है फिर एक खिलौना, अगर निस्बत ना हो खैरुल बशर से। और एक और, मैं ज़माने को भूल जाता हूँ आप जिस वक्त याद आते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। फौजिया सैयद, अस्सलाम वालेकुम बहुत शुक्रिया फौजिया सैयद। अब मैं मिज़ाह की दुनिया के बेताज बादशाह जनाब खालिद इरफान से मुल्तमिस हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार के लिए तशरीफ़ लाएँ। जनाब खालिद इरफान से। बहुत शुक्रिया। आज हम नूर अमरोही की खिदमत का इतराफ़ करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। सबको पता है कि उनका नाम नूर है और वो अमरोहा में पैदा हुए, लेकिन तक़दीस अदब का मकसद ये था कि उन हक़ाइक़ पर रोशनी डालें जो नूर ने खिदमत अंजाम दी है
تو مشاعرے تو سبھی کرتے ہیں، پوری دنیا میں مشاعرے ہوتے ہیں، ہندوستان میں، پاکستان میں، امریکہ میں، لیکن جس طریقے سے اس امریکہ میں نور امروی اور فیاض رامپوری، ہمارے نیو جرسی میں خطیب صاحب سلیمان خطیب، جس طریقے سے یہ لوگ مشاعرے کرتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس سے پہلے ہمارے حافظ زبیری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں نیو جرسی میں، ان کی بڑی خدمات ہیں، عمر رحمان ہیں، وہ کافی عرصے سے مشاعرہ کر رہی ہیں، سب اپنے اپنے حد میں رہ کے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ایک جو انفرادی بات ہے نور امرو کی، وہ یہ ہے کہ 20 سال سے عالمی مشاعرہ ڈیلس میں نعتیہ مشاعرہ کر رہے ہیں۔ اس نعتیہ مشاعرے کی مثال میں سمجھتا ہوں اتنے تواتر سے نہ پاکستان میں ہے، نہ امریکہ میں ہے، اور نہ ہندوستان میں ہے، تو میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے شکاگو میں بھی ان کا جشن ہو چکا ہے، اب یہاں ہے الحمدللہ، اور ان کی فیاض صاحب کی کوشش ہے کہ اس کے بعد بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی چند اشعار نور کے لیے قلم برداشتہ کہے ہیں، ملازمت فرمائیے کہ ایک ہے فیاض خان اور ایک نور امروی، ایک ہے فیاض خان اور ایک نور امروی، رامپوری سے بہت رہتا ہے دور امروی، رامپوری سے بہت رہتا ہے دور امروی، جشن یہ کس کا منایا جا رہا ہے شان سے، جشن یہ کس کا منایا جا رہا ہے شان سے، آج اس محفل میں آیا ہے ضرور امروی، آج اس محفل میں آیا ہے ضرور امروی، کر رہا ہے یہ ترنم سے بہت پسپائیاں، کر رہا ہے یہ ترنم سے بہت پسپائیاں، اور خود کو کہہ رہا ہے بے قصور امروی، کر رہا ہے یہ بہت خوب جی، کیا کر رہا ہے یہ ترنم سے بہت پسپائیاں، اور خود کو کہہ رہا ہے بے قصور امروی، شکر ہے یہ صحبت جون ایلیا سے دور تھا، شکر ہے یہ صحبت جون ایلیا سے دور تھا، ورنہ ہوتا آج بھی محو سرور امروی، شکر ہے یہ صحبت جون ایلیا سے دور تھا، ورنہ ہوتا آج بھی محو سرور امروی، شاعری کے عام یو ایس میں اگا ڈالے گا یہ، شاعری کے عام یو ایس میں اگا ڈالے گا یہ، دیکھنا ڈیلس کو امروہہ بنا ڈالے گا۔ یہ تھے خالد امروئی صاحب جو اپنی ظرافت سے آپ کو محسوس کر رہے تھے آپ کی سماعتوں کو۔ اب میں اس دور کے غزل کے سب سے بڑے شاعر جناب عباس تابی سے ملتمس ہوں کہ وہ پوڈیم پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب عباس تابی، بہت شکریہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، صاحب جشن ڈاکٹر نور امروی صاحب، خواتین و حضرات، میں شکر گزار ہوں فیاض خان رامپوری کا، تقدیس ادب کا اور ان کے تمام اراکین کا کہ اس پروقار محفل کا مجھے حصہ بنایا۔ ڈاکٹر نور امروی کا جشن ہے آج، جو جشن مشاعرہ میں تبدیل ہو گیا۔ نور صاحب سے میرا تعلق خاطر تقریباً 15 سے 20 برس پرانا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شاعر جو ہوتا ہے جسے اللہ کریم عزت دیتا ہے، پذیرائی دیتا ہے، وہ ایک پیکج ہوتا ہے، وہ بطور شخص بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے اور بطور شاعر بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ کچھ بڑے شاعر ہوتے ہیں
ان کی قدر جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہر شاعر جو بڑا ہوگا اور زندگی میں پذیرائی نہیں ملی تو وہ اپنے رستے کی رکاوٹ خود ہوتا ہے، معاشرہ نہیں ہوتا. کیا بات. ڈاکٹر پیرزادہ قاسم ایک پیکج ہے. جتنے لوگ ان کی شاعری کے عاشق ہیں اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ ان کی شخصیت کے بھی عاشق ہیں. کیا بات. اسی طرح نور امروی جو ہے وہ ایک پیکج کا نام ہے. آج مجھے معلوم ہوا کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں. ماشاءاللہ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اس عنایت سے نوازا. خوش الحان ہیں، خوبصورت آواز ہے، اور ان کی شاعری جو ہے اس میں ایک تہذیبی اقدار جو ہیں ان کا بہت ذکر ہے. اپنے سماجی صورتحال، سیاسی صورتحال، روحانی بحران، بہت سے موضوعات ہیں. اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بات کر سکوں، لیکن میں صرف 2-4 جملے اور کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جشن جو شکاگو میں ہوا تو میں نے ایک میسج بھیجا تھا. اس میں ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ ہمارا امروہہ جو ہے وہ جان ایلیا سے شروع ہو کر نور امروی پہ ختم ہوا. اور عطر نفیس کا ایک شعر میں ان کی نظر کرتا ہوں. عطر نفیس کہتے ہیں کہ بہت چھوٹے ہیں مجھ سے میرے دشمن، بہت چھوٹے ہیں مجھ سے میرے دشمن، جو میرا دوست ہے مجھ سے بڑا ہے. نور امروی صاحب کو میں اس جشن پر، اس توقیر پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور فیاض خان رامپوری کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل کا حصہ بنایا. بہت شکریہ. یہ تھے جناب عباس طاہر صاحب. اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ماہر تعلیم ہیں، محقق ہیں، سائنسدان ہیں، ڈاکٹر ہیں، جس دور کے بہت بڑے شاعر ہیں جناب قاسم پیرزادہ صاحب. خاص کر اپنے خیالات کو جناب پیرزادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حاضرین گرامی، یہ محفل جس میں ہم سب موجود ہیں اپنے معنی آفرینی کی وجہ سے شاید منفرد اور جانی پہچانی جائے. معنی آفرینی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو مشاعرہ ہوتا ہے، اس میں آپ اشعار سنتے ہیں. جب آپ اشعار سنتے ہیں تو جو شاعر ہے اس سے بھی ایک تعارف آپ کا ہو جاتا ہے، اور کم سے کم آپ یہ جان جاتے ہیں کہ وہ زندگی کو، اپنے وقت کو، اپنے زمانے کو کس نظر سے دیکھتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے ہم فیض پا سکتے ہیں، یعنی وہ مجلس ہمارے لیے کارآمد ہو جاتی ہے. تو آج کی مجلس میں نے کہا کہ اس کی معنویت ہے. سب سے پہلے تو تقدیس ادب کی بات کر لیں کہ یہ فیاض خان صاحب بڑی لگن کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، اور انہوں نے تقدیس ادب کے ذیل میں کئی برسوں سے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے کہ مشاعرہ تو ایک ہو گیا، لیکن اس سے ہٹ کے انہوں نے ایک ربط و ضبط کی ایک مہم اور ایک سلسلہ قائم رکھا ہے. اس میں یہ بہت ہی خوبی کی بات ہے. نور یہاں بیٹھے ہیں میرے عزیز، ان کا جشن، ان کی اعتراف خدمت ہم سب یہاں بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے جو میں سمجھ سکا ہوں. فیاض خان
इस चीज़ को देखते रहते हैं, उनकी नज़र है और वो ये समझते हैं कि इसमें कोई बहुत ही मारूफ होके अपने उसके इस मकाम पे पहुंच जाए, फिर आप उसका जश्न करें, फिर आप उसके बारे में बात करें, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि उससे पहले आप नज़र डालिए अपने वक्त और ज़माने पे कि जहाँ जहाँ रोशन लोग हैं, जिनमें एक नमूकारी है, एक रोशनी है, वो आपको नज़र आए तो आप उनकी तहसीन कीजिए। ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत मुनासिब है, बहुत ज़रूरी है, ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ ये नज़र आया कि हमारा जो वक्त और ज़माना है, इसमें बहुत सारे लोग शायरी के मैदान में अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं, और इजहार ख्याल भी ये मौजू कहीं और किसी और तरफ जाएगा, लेकिन किसी और वक्त से ही। लेकिन देखा ये जाता है कि वक्त और ज़माना जो है वो अपने मंजर बदलता चला जाता है। जो मेरी आंखों में अपने बचपन में जो मंजर देखे थे, वो अब वो मनाजिर यहाँ नहीं हैं। जो अब के नौजवान और अब के बच्चे देख रहे हैं, वो मनाजिर दूसरे हैं। वो ज़िंदगी को एक दूसरी तरीके से उससे मुतारिफ होते हैं और ज़िंदगी को दूसरी तरीके से गुजारना चाहते हैं। ये एक सिलसिला है, इस तरीके से वक्त और ज़माने में होता चला जाता है। मगर इन चीज़ों को देखने के लिए अगर मेरे ज़माने से पहले का कोई शेर कहने वाला उस तर्ज़ एहसास के साथ कि जिसमें उसकी तरबियत हुई थी, वो अपने ज़माने को, आज के ज़माने को देखेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कहीं से कहीं निकल जाएगा और वो देखते चला जाएगा उसे। ये मंजरनामे दूसरे हैं, ये मंजरनामे दूसरे हैं, तो इसमें तर्ज़ एहसास मुख्तलिफ होना चाहिए। और तर्ज़ एहसास मुख्तलिफ होना काफ़ी नहीं होता, जबकि तर्ज़ इज़हार भी मुख्तलिफ हो, इसके बगैर तो नहीं होता। तो देखिए खूबी ये है कि नूर, आपने यहाँ अशार पेश किए गए, नूर जो शायरी कर रहे हैं वो अपने वक्त, अपने ज़माने के साथ जुड़े हुए हैं और नए तर्ज़ एहसास के साथ चीज़ों को देखते हैं, और उन्हें ये ख्याल भी रहता है कि मेरी एक रिवायत है जो पीछे से चली आ रही है। रिवायत के साथ जुड़े रहना ये बड़ा मुश्किल काम है। यानी इसमें ज़रा सा नुक्ता ये है कि अगर आपने रिवायत परस्ती शुरू कर दी तो गए आप, वो तो फिर आप कहीं के कहीं रह जाएंगे। बस तो आगे जा रहा है, तो रिवायत परस्ती नहीं, रिवायत पसंदी। रिवायत को आप पसंद कीजिए, उसकी पासदारी कीजिए और अपने ज़माने में आगे जाइए। तो नूर ने ये सब चीज़ें देखी हैं, मगर बात यह है कि बहुत लोग इसी तर्ज़े अमल के साथ गुजरते हैं। नूर के यहाँ जो ख़ास बात है, जो मैंने महसूस की, बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ, बात भी होती रहती है, इनसे मशवरे भी कर लेते हैं कभी। ये भी एक अच्छी बात है कि इनके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, यानी एक काम तो इन्होंने ये किया है और बहुत कम करते हैं। हम यहाँ देखिए हॉल भरा हुआ है, आप जानते हैं कि फला मेरा दोस्त है, ये मेरा शहर है, ये मेरा वक्त है, फला मेरा इदारा है, सारी चीज़ें आप ये कहते हैं रिलेशनशिप, रिलेट, आप अपने उसको शख्सियत और उसके साथ ये रिलेशनशिप्स करते चले जाते हैं। तो आप सबके बारे में जानते हैं, बहुत इत्तलात है आपके पास, सब जानते हैं आप दुनिया में, मगर अपने बारे में नहीं जानते। ये जो एहसास है कि आपने नजर डाली है अपने ऊपर भी, और इस तरीके से नजर डाली है कि आप अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। एक बेहतर इंसान, एक बेहतर तख्लीक़कार इंसान तो है ही, फिर तख्लीक़कार की जिम्मेदारी आ गई भाई, वो कैसे पूरी करेगा, उसे वो जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है। तो एक बेहतर और अच्छे तख्लीक़कार की जो चीज़ें, खुसूसियात जो उसमें होनी चाहिए, वो सब उस पर नज़र डाले
चुनाचे इन्होंने अपनी तरबियत ज़ात की है। हम लोग बहुत सारी तरबियत गाहें हैं, तरबियत होती रहती है, तरबियत ज़ात का हम ज़्यादा ख्याल नहीं करते। अपने आप की तरबियत खुद करनी चाहिए कि आप कहाँ जिंदा हैं, किन लोगों में हैं, कहाँ हैं, आने वाला वक्त आपसे क्या कहता है, आप उसे देखिए, गौर कीजिए, सोचिए, फिर वो एक तरबियत हो जाती है आपके ज़ात की भी। तो इन्होंने अपनी तरबियत ज़ात की है। और जो बात निकल के आई, जो मैंने महसूस किया कि इनके अंदर वो है इखलास। ये अपने आप से भी मुखलिस है, अपनी शायरी से भी मुखलिस है, और ये वक्त और ज़माने के साथ भी मुखलिस है। यानी ज़माने को बेहतर से बेहतर तो देखना चाहते हैं। ये नहीं कि मेरा वक्त गुजरा जा रहा है, मुझे क्या भाई, मैं तो अपना वक्त गुजारूं, कदम करूं किस्सा नहीं। ये इसका ख्याल रखते हैं कि वक्त जो है ये बदल रहा है, गुजर रहा है, इसमें कैसा होना चाहिए। अब कैसा होने के लिए तो इन्हें खुद मिसाल करना पड़ेगा ना। तो ये मिसाल बने, और जब ये मिसाल बने तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब आदमी मिसाल बनता है तो फैयाज खान की नज़र पड़ती है और लोगों की नज़र पड़ती है। तो फिर ये जो आज की तकरीब है इनके एजाज में, ये बहुत मुनासिब और बहुत अच्छी तकरीब है और मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अब मैं जो यहाँ फिट हूँ, मिसफिट हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये कि मैं या मेरे जैसे लोग हैं, और भी बैठे हैं यहाँ, सबिया बैठी हैं और भी उमेरा हैं, हम जो है पेशवा हैं। पेशवा का मतलब ये है कि शायर हैं, पुराने हैं, इनसे पुराने हैं, बस पेशवा हैं इनके, बस जिम्मेदारी खत्म हो गई। पेशवा का मतलब ये है कि हम इस नस्ल की जो हमारे बाद आने वाली है, तहसीकारों की वो नस्ल जो उसके बाद अपना रास्ता बनाएगी, उसके लिए कुछ ना कुछ तो मिसालें छोड़नी पड़ेगी ना। तो अगर हम उनकी तरबियत कर सके, इस लिहाज से नहीं कि दीवान दे गए कि भाई ये मेरे 4 दीवान हैं तो बस ये इसे पढ़ते रहें, ये इससे नहीं होता। अगर हम उनके लिए रास्ते बना सकें, क्या बात है, तो ये एक अच्छी बात होती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा है, मैं तो इन्हीं को देख के जिंदा रहता हूँ कि ये जो आने वाली नस्ल है ये कैसी है। मैंने तो डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं अगले मशायरे जो है अब्बास ताबिश की सदारत में पढ़ूँ। क्या बात, इसलिए अब्बास ताबिश को जाहिर है मुझे सामने से देखिए, बिल्कुल, और हमारा मान है, ये बात है। तो इसमें हमें एक पेशवा की हैसियत से हमने अपना काम किया, चीज़ें इनको मुंतकिल हो गई और अब ये उसे लेके आगे जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दायम कायम रखे। ये फैयाज साहब हैं और ये अपने काम करते रहेंगे, ये भी बड़े लगन वाले आदमी हैं, तो ये काम करते रहेंगे और आप इसी तरीके से आते रहेंगे, मशायरे होते रहेंगे। यहाँ तो एक मैं यहाँ आया तो एक वो तो फिर बात अलग बढ़ जाएगी कि तारीख उस पर जाएं। मतलब ये कि जब मैंने मुशायरे पढ़ने नहीं शुरू किए थे, लेकिन शेर कहने लगा था, 60 की दहाई की बात है, 62 समझ लीजिए। तो मेरा पहले सामने कौन था? कौन था मेरा पहला सामने? किसके साथ बैठते थे? ये यहाँ बैठी है सबिया सबक, इन्हें याद नहीं होगा, वो अलग बात है। तो ये चीज है, हमें याद है जरा। अच्छा, आप सारे हॉल में आपने इतनी इज्जत अफजाई की मेरी, इतनी तालियां और इतने लोग, मैं तो चेहरों से और मुलाकातें सबसे रही हैं, बहुत मेरा जी खुश हो जाता है। और ये सिलसिले शुरू हो गए, यानी अमेरिका में मुशायरे, और मैं भी आ गया। वो जब भी पहला मुशायरा हुआ हुमैरा रहमान ने किया था। ये बैठी है यहाँ हुमैरा रहमान,
मगर हमें इन सबको याद रखना चाहिए। जो जो कर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन है, ये जिंदा, ये यादगार के तौर पे सामने आना चाहिए। तो मेरा अब आप कुछ शायरी के अलावा लिखें, इस पूरे दौर को लिखिए, और अगर ये सब्रिया कुछ काम कर सकें तो बहुत ही अच्छा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इस तेजी के साथ जिस तरह दुनिया बदलती जा रही है, बहुत सारी जुबानें जो ना नापैद होती जा रही है, कई जबानें खत्म होती जा रही हैं। तो उर्दू जबान को जिन लोगों ने जिंदा रखा है, रख रहे हैं, तकदीस अदब ने डेलिस में जैसे काम करिए, डॉक्टर शमशेद कुरैशी साहिबा, नूर अमरोही साहब, हमने अवार्ड का बंदोबस्त किया इनके लिए, तो फिजाल कासिम साहब अवार्ड पेश करें। मैं दावत दूंगा शमशेद कुरैशी साहिबा को वो तशरीफ लाएं। एक और अवार्ड है, वो डॉक्टर नूर अमरोही साहब के लिए, उनकी खिदमत, उर्दू के लिए जो उनकी खिदमत हैं, तो तकदीस अदब की तरफ से नूर अमरोही साहब को जो ये अवार्ड पेश किया जाता है। बहुत शुक्रिया फिरजादा महमूद शाह साहब। ये डायमंड की वॉच है जो डॉक्टर शमशेद कुरैशी साहिबा नूर साहब के लिए पेश कर रही हैं, उनकी खिदमत कर रही हैं। ये तकदीस अदब की तरफ से मुजल्ला है, एक नूर साहब के लिए और एक डॉक्टर शमशेद कुरैशी साहिबा के लिए। एक ही है ना अब मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर नूर अमरोही साहब से कि वो अपने खूबसूरत कलाम से आपको महसूस फरमाएं और खासतौर पर इनका तरन्नुम जो है पूरी उर्दू दुनिया में बहुत ही मारूफ है। इज़हार ख्याल करें और अपना कलाम भी सुनाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसका तख्ते अज़मत व जलाल हमेशा से और हमेशा रहेगा, और हज़ारा दुरूद व सलाम सरवर किशोर रिसालत शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। शुक्रिया कैसे अदा करूँ? इंसान के ख़यालात का या उसका जो एहसासात होते हैं उसे ज़बान दी जा सकती है, लेकिन कहीं कहीं अल्फाज बहुत बौने नज़र आते हैं और पता नहीं चलता। ऐसी मौक़े पे कुछ कहा था आले अहमद रज़ा ने कि खुदा करे कि वो मिल जाए तो कुछ उनसे कहूँ जो लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ मैं इब्तिदा के लिए। सच्ची बात ये है कि जश्न तो बड़े लोगों के होते हैं, ये तो बस एक मोहब्बत का एक जुनून कह लें या मोहब्बत कह लें। और मैं बड़े इंतहाई आपको ईमान और ईकान के साथ में कह रहा हूँ कि जो मेरे बारे में इज़हार ख्याल फरमाया ये इनका उसने नज़र ही कह सकते हैं। एक उर्दू अदब का कुतुब मीनार जिन्हें हम डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब कहते हैं, और ऐसी शख्सियत अब्बास ताबिश साहब जिनका पूरी दुनिया बड़े अदब और एहतराम से नाम लेती है और पूरी रात उनको सुनने के लिए बेचैन बैठी रहती है। सबिया आपा, हुमैरा बाजी और ममलकत तंज़ुम का शहंशाह खालिद इरफान जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, या और इफ़त अपने ज़ोरा जबी साहिबा बैठी कनाडा तशरीफ़ लाई हैं। शुक्रिया बेइंतहा, मैं बड़े इख्तिसार से काम लूँगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इनके तो कदमों में बैठना, इनके साथ में पढ़ लेना, इनको देख लेना, इनको सुन लेना, मेरा तो जश्न, मेरा तो अवार्ड और मेरा तो एजाज़ सबसे बड़ा ये है। और भी शादी ने कहा था कि बज़्म अंजुम में क़बा खाक की पहनी मैंने, क्या बात, बज़्म अंजुम में क़बा खाक की पहनी मैंने, और इसी खाक से और इसी मैं भूल रहा हूँ पोशाक, बहरहाल बड़ा दूसरा मिसरा मेरे जहन से निकल रहा है कि मेरे को तैयारी नहीं होती है मौक़ों पर। तो आज मैं ये कर रहा था कि बस मैं वो अब मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ। और मेरी बज़्म अंजुम में क़बा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। तो मेरी जो फजीलत है, जो कुछ है, इन्हीं हज़रात से मिला। अब रहा सवाल ये जश्न का, तो सच्ची बात ये है कि फैयाज़ खान के बारे में मैं क्या कहूँ। बशीर बद्र ने कहा था कि तुझको खुदा नवाज रहा है तो खुश न हो, तो क्या समझ रहा है ये शोहरत गज़ल से है। सच्ची बात ये है कि ये इज़्ज़त अज़मत ये खुदा के ख़ास दरवाजे से मिलती है। मैं आपको बड़ी सच्चाई के साथ अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह का करम, ये भरम, बुजुर्गों की दुआएं अगर ये निकाल दी जाएँ तो मेरे पास वही कुछ बचता है जो अलिफ से पहले या एक से पहले बचता है या ज़ीरो से पहले बचता है। यह आपकी अज़मत है। फैयाज़ खान के बारे में आखिर में मैं क्या कहूँ, इस शख्स के बारे में इतना जुनूनी इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि उर्दू को इस शख्स ने ओढ़ लिया है, और ऐसा ओढ़ा है कि जहाँ पर अदब के नाम पर बहुत सी बेअदबियाँ भी हो रही हैं, जहाँ पर तक़सीम अदब हो रहा है, वहाँ पर तक़दीस अदब की बुनियाद डालकर इस शख्स ने जो इस हॉल को भरा है, ये इसे आप मामूली काम न समझे। मैं मुशायरे कराता हूँ, मुझे पता है कितनी जान जोखम का काम है कि तन मन धन सब कुछ लगाकर यहाँ पर इसमें जमा करना, लोग बुलाना, और एक ऐसे नाम पर नूर अमरोवी क्या बेचता है, कुछ भी नहीं है। तो आप हज़रात तशरीफ़ लाए। फैयाज़ खान मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि बज़्म हस्ती को सजाने या बिगाड़ने के लिए दो ही चीज़ें होती हैं, या तो नूर या गुरूर। गुरूर मिट जाता है, नूर हमेशा बाकी रहता है। ह्यूस्टन में
ह्यूस्टन में आप उर्दू अदब का नूर हैं और ये इंशाल्लाह बाकी रहेगा। मैं चाहता हूँ उनकी हौसला अफजाई में तालियों से इजाफा फरमाएं। और कोविड के बाद में जो सूरत हाल हुई है माली तौर पर पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक वो जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया और एक वो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया, और दोनों एक दूसरे के मरने का इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में ये महफिल सजाना और ये पूरी नशस्त भरना, आप क्या समझ रहे हैं ये मामूली काम है? बहुत बड़ा काम है। मैंने इस शख्स से बखुदा बारहा कहा कि भाई ये रहने दो जश्न वश्न, फिर जब ये नहीं माने तो मैंने एक ऐसी शख्सियत का सहारा लिया जो इनके मेरे तो मुश्तरका दोस्त हैं त्रिवे कॉलिंग पे। मैंने इनसे कहा देखो, मुशायरे के बाद मुझे पता है क्या हालत होती है, जितनी खुशी मुझे उसके बाद में होगी, मुझे उससे ज़्यादा गम जब होगा जब मैं सुनूंगा कि बहुत ज़ेरे बार हो गए। तो दोस्तों को मैं निभाना चाहता हूँ, इसलिए मैं वो नहीं चाहता। इस शख्स ने कहा नहीं साहब जश्न होगा, इसी आन बान शान से होगा। आज इसने अपनी बात पक्की कर दी, अल्लाह इनको अजर अजीम अता फरमाए। आखिर में एक बात मैं और कहता चलूँ कि वक्त काफ़ी हो गया है। असल में इंसानी फितरत है कि गीबत और बुराई जो होता है ड्राई फ्रूट की तरह होता है, इसे खाते रहें इश्तिहा बढ़ती रहती है, लेकिन किसी की तारीफ सुनना, किसी के बारे में अच्छाई सुनना बड़े सब्र का काम है। इंदल्लाह मा साबरीन आप पर बिल्कुल ये साबित आता है। आप सब लोग जन्नती हैं। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह आपको इस जब्र और सब्र का अजर अता फरमाए। क्या बात है। आखिर में शुक्रिया असल में बहुत से हैं, मेरी तरफ वाजिबात हैं, लेकिन अगर ये भी काम मैं करने लगूँ तो मुझे खतरा है कि ये कहेंगे भाई इसके लिए नहीं बुलाया था, ये हमारा काम था। लेकिन चंद शुक्रिया ऐसे होते हैं जिनको आप सब जानते हैं, जो काम कर रहे हैं उर्दू अदब के लिए, और उनको बिलाशुबा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एक शख्सियत डॉक्टर शम्सा कुरैशी साहिबा जिन्हें आप देख रहे हैं, इन्हें पूरी दुनिया जानती है कि ये मुँह बोली बहन है, लेकिन ये बहनों से ज़्यादा मेरा इनका खुलूस का मोहब्बत का रिश्ता है। और बहुत साहिब दीवान शायरा हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, बड़ी इनकी खिदमत है, मोहसिन उर्दू हैं। डैलस में अगर इनको निकाल दिया जाए उर्दू से तो पूरा अदब बेनूर हो जाएगा। ये इनकी शख्सियत है। डॉक्टर शम्सा साहबा आपका बड़ा शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएँ, इस जश्न को आपने जश्न बनाया। इसके अलावा आसिफ सलीम साहब, ये मेरे फनगाम के चेयरमैन यहाँ पर बैठे हैं, शिकागो से तशरीफ लाए, बड़ी सिंसियरिटी के साथ में उर्दू का काम कर रहे हैं। फिर उमर राजपूत तो कौन नहीं जानता कि ये मेरे दोस्त से ज़्यादा मेरे भाई हैं और मुझे गर्व है इनकी दोस्ती पर। इरफान अली साहब, इतना बड़ा नाम है हमारे शहर का कि पूरी दुनिया से जब कोई शायर या अदीब आता है इरफान साहब को जानता है, हमारे शहर का शामियाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने शाह साहब तशरीफ फरमा यहाँ पर, शाह गजाली साहब, नीलोफर अफशा साहिबा और इनायत अशरफ साहब, ये तो शहर की जान हमारी शान है। तो कुछ अशार सुना दें। आखिर में बस मैं चूँकि हुक्म हुआ है शेर सुनाने का, तो मैं गज़ल के चंद शेर बस सुना देता हूँ और उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम एक मरतबा आपका फिर शुक्रिया। बस मैं एक ही गज़ल पढ़ता हूँ चूँकि जी इस फ़ोन ने सबको जो है जीना दो बार कर दिया, पूरी दुनिया इसकी दीवानी हो गई जी। तो डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से सिर्फ चंद शेर गज़ल के। हमने बना के इश्क का मेयार रख दिया, हमने बना के इश्क का मेयार रख दिया, दिल को हुजूर संगे दरियार रख दिया, दिल को हुजूर
ملاحظہ فرمائے کہ تقسیم جائیداد کی ایسی ملی خوشی، تقسیم جائیداد کی ایسی ملی خوشی، اس نے بلا کے باپ کا کردار رکھ دیا، اس نے بلا کے باپ کا کردار رکھ دیا۔ شعر آخر مجھے پتا ہے اس میں شعر نہیں بلکہ کھانا اچھا لگتا ہے، آخری شعر اس نے بلا کے باپ کا کردار، اس راہ گزر میں اب کوئی ٹھوکر نہ کھائے گا، اس راہ گزر میں اب کوئی ٹھوکر نہ کھائے گا، ہم نے دیا جلا کے سردار رکھے، ہم نے بہت بہت شکریہ۔